हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक मैथमेटिकल सीरीज में। एक टॉपिक है स्टैटिस्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले आज यहाँ पर हम कवर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एन एवरेज वैल्यू और अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन. This representative value are called the measures of central tendency. Generally, the following 5 measures of central tendency are there. The first one is mathematical average. It includes arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. And second one is the positional average, that is median and mode. Now, arithmetic mean. For ungrouped distribution, we have arithmetic mean. It is defined as if x1, x2, xn are the n values of variate xi, then their arithmetic mean x bar is defined as x bar equal to x1 plus x2 plus xn upon n, that is summation of all xi from I equal to 1 to n upon n, and summation of xi, these xi is equal to n times x bar. It is very helpful while you will be solving the question. For ungrouped and grouped frequency distribution, we have if x1, x2, xn are values of variate with corresponding frequencies. Now the frequencies have been given because it is grouped frequency, f1, f2, fn. Then the arithmetic mean is given by x bar equal to f1 x1 plus f2 x2 plus fn xn upon f1 plus f2 plus fn, that is summation of fi xi from I equal to 1 to n upon capital N, where capital N is summation of all the frequencies. By sort method, this is sort method which is called step deviation method, because this is di is xi minus a, so x bar equal to a plus summation of fi di upon n. A is the assumed mean. Now this is step deviation method, this is assumed mean method, and this one is the step deviation method, where we have taken the lower limit, the involvement of interval bit ui we have defined as di upon h, that is xi minus a upon h. X bar will be given by summation a plus assumed mean plus summation of fi ui upon n into h. H is the height or the width of the interval. Now weighted mean. If w1, w2, wn are the weights assigned to the values x1, x2, xn respectively, then their weighted mean is defined as, weighted mean is w1 x1 plus w2 x2 plus dash 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 wn xn upon wn plus dash 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 wn, that is summation of wi xi from I equal to 1 to n upon summation of wi from I equal to 1 to n. Combined mean. If x1 bar and x2 bar be the means of two groups having n1 and n2 terms respectively, then the mean or combined mean of their composite group is given by combined mean, that is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. If there are more than two groups, then the combined mean is given by n1 x1 bar plus n1 x2 bar plus n3, this is n2 x2 bar, n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar plus dash 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 upon n1 plus n2 plus n3 plus dash dash dash. Properties of arithmetic mean, very important. Sum of deviations of variate from their arithmetic mean is always 0, that is summation of all xi minus x bar is 0, summation of fi xi minus x bar is 0. Sum of square of deviations of variate from their arithmetic mean is minimum, that is summation of xi minus x bar ka whole square is minimum. If x bar is the mean of variate xi, then arithmetic mean of xi plus lambda is x bar plus lambda. Arithmetic mean of lambda into xi is lambda times x bar. Arithmetic mean of axi plus b is ax bar plus b, where lambda a b are constant. So this is very important. If there is any change in the observation, suppose every observation has been increased by lambda, then the mean arithmetic mean also get increased by lambda. If every observation gets multiplied by lambda, then arithmetic mean also get multiplied by lambda. If arithmetic mean get multiplied by a and added and b is added, then it get multiplied by a and b get added in the arithmetic mean. Arithmetic mean is independent of change of assumed mean, that is it is not affected by any change in assumed mean. आप किसी भी टर्म्स को assumed mean मानकर कर सकते हैं क्वेश्चंस को. मीडियन. सेकंड आता है मीडियन. द मीडियन ऑफ अ सीरीज इज द वैल्यू ऑफ मिडल टर्म ऑफ द सीरीज व्हेन द वैल्यू आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर. देयरफॉर मीडियन डिवाइडेड एंड अरेंज सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट. मीडियन क्या करता है, बीच की वैल्यू देता है जिससे पूरी सीरीज हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो सके. फॉर्मूले ऑफ मीडियन क्या है, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेट एन बी द नंबर ऑफ वेरिएट इन अ सीरीज. हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ सीरीज जितने भी हैं वो वेरिएट जो भी वेरिएबल या ऑब्जर्वेशन है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है पूरे सीरीज में. तो मीडियन जो होता है हमारा n प्लस 1/2th टर्म होता है अगर n ऑड है. व्हेन n इज ऑड, मीडियन इज n प्लस 1/2th टर्म, and when n is even, then it is mean of n/2th and n/2 plus 1th term, that is it is equal to n/2th plus n/2 plus 1th term divided by 2, because it is mean of n/2th and n/2 plus 1th term. For ungrouped frequency distribution, still it is ungrouped, but now the frequency distribution has been involved. So whenever
take outing median. If frequency is involved, you have to prepare another frequency table that is called cumulative frequency. First we prepare the cumulative frequency CF column and find value of कैपिटल N. इससे क्या होता है, लास्ट वाला जो सम आता है वो पूरी वैल्यू आ जाती है. अब मीडियन क्या होगा, कैपिटल N प्लस जो हमारा कैपिटल N आया मीन्स सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, N प्लस 1/2th टर्म होगा व्हेन N इज ऑड, मीन ऑफ N/2th एंड N/2 प्लस 1th टर्म होगा व्हेन N इज इवन. तो ये N/2th प्लस N/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2 हो जाएगा फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब ग्रुपिंग में है मतलब इंटरवल इन्वॉल्व हो गया. प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, फाइंड वैल्यू ऑफ N/2 फाइंड करो, देन फाइंड द क्लास विच कंटेन द वैल्यू ऑफ CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल और जस्ट ग्रेटर टू N/2 कैपिटल N/2. तो यहाँ से हमें मीडियन क्लास निकल जाएगी. ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करना जो N/2 के या तो बराबर हो या तो N/2 से बड़ी हो. मीडियन होगा वही मीडियन क्लास होगा. अब मीडियन में जो ये L है ये लोअर लिमिट होगा उस मीडियन क्लास का. मीडियन का फॉर्मूला सबसे सरल तरीका है वो है L प्लस N/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H. यहाँ पर तो ऐसे दिया, आप ऐसे याद कर लो L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. इससे याद हो जाएगा L हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, N/2 तो हमने निकाल ही लिया है, माइनस CF करेंगे. ये CF है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. मीडियन क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो है, अपॉन F जो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, इंटू H हाइट ऑफ मीडियन क्लास या क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास है जिसे क्लास बिड्थ भी कहते हैं. नाउ मोड होता है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मोड इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मोड क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा बार उसकी फ्रीक्वेंसी हो, विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अब आता है मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग मोड. फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन में द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती है वही मोड होता है. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में जिस भी वेरिएट की या ऑब्जर्वेशन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा मोड हो जाता है. बट अब जब ग्रुपिंग में डेटा आ जाए, बट फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव फर्स्ट वी फाइंड द क्लास विच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. पहले तो हमें क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसमें भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास. वो हमारी कैसी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी. अब मोड का फॉर्मूला L प्लस F0 माइनस F1 अपॉन 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H. ये तो इसमें ऐसे दिया है, बाकी क्लास 10th के NCERT बुक में बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आप उससे याद कर सकते हैं. L हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है, इसमें F0 को फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मान लिया, जबकि NCERT ने F1 को फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माना है. F0 ऑटोमेटिक प्रीसीडिंग मॉडल क्लास हो जाएगी और F1 जो होगा हमारा सक्सीडिंग मॉडल क्लास हो जाएगा. लेकिन इसके हिसाब से अगर चलेंगे तो F0 हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास मतलब F1 माइनस F0 होना था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F1 इंटू H. सिंपल. नाउ रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इसे कहते हैं एम्पेरिकल रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड. इट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला. मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोड हमारा क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है. मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. मीडियन ऑलवेज लाइज बिटवीन मीन एंड मोड. एक इंपॉर्टेंट नोट, मीडियन हमेशा मीन और मोड के बीच में रहता है. फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर कोइंसाइड. अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसा ऊपर की फ्रीक्वेंसी में नीचे की फ्रीक्वेंसी सेम है, सिमिलैरिटी है, तो वो मीन मीडियन मोड होता है. सिमेट्रिक क्या है, ऐसा कोई भी लाइन होता है जो हम दो भागों में इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे, विच डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसे सिमेट्रिक कहते हैं. तो यही है, मीन मीडियन मोड इसके कोइंसाइड होंगे अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट. द डिस्पर्जन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स वैल्यूज अबाउट दियर एवरेज और सेंट्रल वैल्यू. जनरली द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर कॉमनली यूज्ड. कौन कौन से हैं, रेंज है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है. इसके बाद हमारा रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड द रेंज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब रेंज होता है हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सिंपली जो भी अपर लिमिट और क्लास इंटरवल का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, या जो भी वेरिएट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू है उसी का अगर हम करते हैं डिफरेंस तो वो रेंज होता है. If the difference is grouped between, if the distribution is grouped distribution, then its range is the difference between upper limit of the maximum class and lower limit of the minimum class. Also, coefficient of range कैसे निकलता है, coefficient of range is difference of
extreme values upon sum of extreme values, difference of extreme values upon sum of extreme value. Mean deviation MD. The mean deviation of a distribution is the mean of absolute value of deviations of variate from their statistical average, that is mean, median and mode. If A is any statistical average of a distribution, then mean deviation about A is defined as mean deviation around A will be summation of modulus xi minus A from I equal to 1 to n upon n. दिस इज फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर मॉड लेकर कर रहे हैं. अगर हम मॉड नहीं लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मीन से xi माइनस ए कुछ भी करेंगे मीन से तो वो क्या आएगा. अभी तो यहाँ मीन से नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसी एक पॉइंट ए से कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन करना होता, आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन ही हमारा टॉपिक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए मीन डेविएशन अबाउट अ पॉइंट ए किसी भी पॉइंट ए से भी निकल सकता है. तो दिस इज मॉड xi माइनस ए करना है. अगर फ्रीक्वेंसी दे दिया तो सिंपली फ्रीक्वेंसी है फाई मॉड xi माइनस ए अपॉन कैपिटल एन, मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट इज़ मिनिमम व्हेन इट टेक्स अबाउट द मीडियन. अब मिनिमम कब हो जाएगा, जब ये मीडियन ले लेगा. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो होता है वो होता है मीन डेविएशन अपॉन ए. ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है, वेयर ए इज द सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच मीन डेविएशन इज टेकन. Now variance and standard deviation. The variance of a distribution is mean of squares of a deviation of variate. Mean of squares of deviation of variate from their mean. It is denoted by sigma square or variance x. The positive square root of the variance are called the standard deviation. It is denoted by sigma or SD. Standard deviation equal to plus under root variance. Now formula for variance. Now for ungrouped distribution we have sigma x square means about x summation xi minus x bar का whole square upon n summation. Now sigma square x is what, now the short form summation of xi square upon n minus x bar का whole square, which is also equal to summation xi square upon n minus summation of xi upon n का whole square, because x bar is what, summation of xi upon n. So this is the short form. When it will open, then we will get this short form only. Now about D is what, the deviation which we have seen in step deviation and assumed deviation, assumed mean method. So it is nothing but a short form to carry out the mean. Sigma square about D equal to summation of di square upon n minus summation di upon n का whole square. For frequency distribution, do simply just multiply by the frequency summation fi xi minus x bar का whole square upon n. N is what, summation of fi xi. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिस वन, सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जल्दी हो जाएगा, इसलिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ये प्रोबेबिलिटी में भी आगे बहुत काम देने वाली है. हम आगे चलते हैं, पीछे होगा. ये रहा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. एक्स बार क्या है हमारा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन है. और ये अबाउट डी निकाला है तो ये हो गया. अबाउट स्टेप डेविएशन निकाला है तो ये यू डी आई अपॉन एच. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाता है वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन मीन से. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया जाता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये परसेंटेज होता है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर के, इक्वल होता है सिग्मा स्क्वायर डी के, मीन्स एज्यूम्ड मीन के. बट जो हमारा यू स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकलता है उसके एच स्क्वायर टाइम बराबर होता है, एच स्क्वायर टाइम सिग्मा स्क्वायर यू के. नाउ मीन स्क्वायर अबाउट डेविएशन, तो मीन स्क्वायर डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. द मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम एज्यूम्ड मीन. इट इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर. इसे कहते हैं मीन स्क्वायर डेविएशन, जो कि एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन होता है, जो कि समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर अपॉन एन है. फॉर अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ले, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले, सिंपली समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा. नाउ रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है, हमने पीछे देखा ही था. सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर. और रिलेशन जो निकला हमारा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. डी क्या है, एक्स बार माइनस ए है.
एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट एस स्क्वायर इज व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। हेंस वेरिएंस जो होता है वो हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वेरिएंस की, वेरिएंस एक्स आई प्लस लैम्डा इक्वल टू वेरिएंस एक्स आई। सपोज अगर जितने भी ऑब्जर्वेशन है अगर उसमें हम लैम्डा ऐड करते जाएंगे तो वेरिएंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, वेरिएंस रिमेन सेम। वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस लैम्डा इक्वल टू वेरिएंस एक्स आई, वेरिएंस of lambda xi, मतलब if each and every observation get multiplied by a lambda, then variance get multiplied by lambda square times. Variance very important, this one is most important property. Variance lambda xi equals to lambda square into variance xi, lambda square into variance xi. Variance axi plus b equal to a square into variance xi, where lambda a b are constant. If means of two series containing n1 n2 terms are x1 bar x2 bar and their variances are sigma 1 square sigma 2 square respectively and their combined mean is x bar, then the variance of sigma square of their combined series is given by, जैसे कि हमने combined mean निकाला था x bar जो होता था n1 x1 बार अब प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, तो कंबाइंड मीन निकल गया x बार। अब वेरिएंस कैसे निकलेगा कंबाइंड सीरीज की, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2। इतना इजी फॉर्मूला। d1 di जो है हमारा, या जो भी यहाँ d1 है तो d1 d2, d1 हमारा x1 बार माइनस x बार होगा, जो हमारा कंबाइंड मीन का बार था वो ओवर x1 बार से माइनस d2 जो है हमारा x2 बार माइनस x बार का है। या तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n1 सिग्मा स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू x1 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। इससे भी हमारा वेरिएंस निकल सकता है। तो ये दो फॉर्मूलाज थे। सो आई होप गाइज स्टैटिस्टिक्स अब खत्म हो गया। लेट अस रिवाइज वंस अगेन। हमने इस पूरे स्टैटिस्टिक्स में क्या देखा, स्टैटिस्टिक्स में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखी, अरिथमेटिक मीन देखा, फिर अरिथमेटिक मीन निकालने के सारे तरीके देखा, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी अरिथमेटिक मीन की, फिर मीडियन निकाला, मोड निकालने का सीखा, एम्पेरिकल रिलेशन देखा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखा हमने, फ्रीक्वेंसी अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए हमने देखा। फिर हमने एक मीन स्क्वायर डेविएशन देखा, रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर डेविएशन निकालना, देन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस भी सीखा। एंड इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक पूरा खत्म हुआ। आई होप गाइज यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।